Assalamu alaikum. I am Adnan Shib, faculty member at CompSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 11 on the course of issues in accounting practices. Today's our topic is the inventories additional issues. In the last lecture, which we have discussed is the inventories, what are the issues related to inventories and how these are being measured. There are some different issues that exist also in the inventories. कुछ और issues भी हैं, सिर्फ वो issues नहीं है जो हमने last time discuss किए थे, कुछ additional issues भी exist करते हैं. For example, in the FIFO, LIFO and average cost, there are certain issues regarding it that we have studied. But today what we are going to study is the lower cost or to market method, and there are two other methods that we are going to discuss in which there are various issues that exist in that lecture. So what we are going to study is the other methods that involved in this type of things. So that is known as additional issues. In the last lecture, what we have studied is how the FIFO would be measured and how the LIFO would be measured, and what are the GAAP and IFRS issues regarding these methods. But today what we are going to study is the further methods what can exist on a market value basis. So starting with the today's topic. Describe and apply the lower cost or net realizable value rule. That is a new thing in case of inventories. Lower to cost or market, which is the method on which we apply the inventories rule. Explain when companies value inventories at net realizable value. A company कब अपनी इन्वेंट्रीज को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मेजर कर रही होती है. एक्सप्लेन व्हेन कंपनी यूज रिलेटिव सेल वैल्यू मेथड टू वैल्यू इन्वेंट्रीज. रिलेटिव सेल मेथड भी है. डिस्कस अकाउंटिंग इश्यूज रिलेटेड टू परचेज कमिटमेंट्स. दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. डिटरमिन एंडिंग इन्वेंट्री बाय अप्लाइंग द ग्रॉस प्रॉफिट मेथड and determining ending inventory by applying the retail inventory method, and explain how to report and analyze the inventory. These are the objective of today's lecture, and what we are going to see over there, because that's the lecture number 11 of your course. Now that is a whole topic that in which we are going to cover. First one is a lower of cost of market, in which देखेंगे what is the ceiling and what is the floor, how LCM works. LCM means lower to cost market rule. Markets, use of allowance, multiple period, evaluation of rules. These all things are included in this lecture. Valuation basis we also see net realizable value क्या होती है, relative sales value क्या होती है, परचेज कमिटमेंट्स क्या चीज होती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं. ग्रॉस प्रॉफिट मेथड आता है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ जाती हैं, इवैल्यूएशन मेथड्स आ जाते हैं, रिटेल इन्वेंट्री मेथड आ जाते हैं जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, कन्वेंशनल, स्पेशल आइटम्स, वैल्यूएशन ऑफ मेथड्स, एंड देन प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्रीज. सो स्टार्टिंग विद दैट, लोअर ऑफ कॉस्ट टू मार्केट रूल. The company abandons the historical cost principle when the future utility of asset drop below its original cost. Market is equal to replacement cost. Lower of cost or replacement cost. Loss should be recorded when loss occur not in period of sale. What the lower to cost market rule? First of all, before starting it, we talk about the replacement cost. Replacement cost क्या होती है? हम सबको समझ आती है ये क्या जी, cost to replace है. कॉस्ट टू रिप्लेस भी कैसे इसे मेजर कर सकती है और हम उसे कैसे कह सकते हैं दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू मार्केट. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू बाय सपोज अ चेयर ऑफ ₹2000, आपने चेयर बाय कर ली फॉर ₹2000 की. अब यू आर एबल टू सेल इट विथ 3000. उससे आप कितने में सेल कर सकते हैं, दैट इज ऑफ 3000, एंड उसे 3000 में सेल करने के बाद आप उसे वापस 1500 में खरीद सकते हैं. तो इट मींस दैट योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 15. यानी कि पहले जो आपने चेयर खरीदी वो 2000 की थी, बेच आप उसे 3000 में सकते हैं, और दोबारा अगर खरीदनी पड़ी तो यू कैन इजीली बाय इट एट 1500, यानी 500 लेस देन योर ओरिजिनल इन्वेंट्री वैल्यू. सो जब आप इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करेंगे इसे, तो आप उधर पे 2000 भी लिखेंगे ना, उधर पे 3000 लिखेंगे, और ना ही उधर पे आप क्या नाम है इन दोनों का डिफरेंस है, बल्कि आप वो लिखेंगे जो आपको उसके बाद रिप्लेसमेंट किए. देखिए सिंपल सा केस है, आप 2000 की चेयर ली,
3000 की सेल कर सकते हैं, 1500 की दोबारा एक्वायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एट द प्रेजेंट यू कैन एक्वायर दैट चेयर ऑफ 1500, सो दैट मींस द एग्जिस्टिंग चेयर कैन बी सेल्ड एंड रिप्लेस्ड बाय 1500 रुपीज, यानी कि उसे हम 2000 की बेच सकते हैं, देन 1500 की हम उसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, यानी दोबारा इसे ले सकते हैं, यानी उसे आप दोबारा खरीद के दोबारा बेच सकते हैं। तो दैट मींस योर इन्वेंट्री कुड बी रिप्लेस्ड फ्रॉम 2000 टू 1500, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 1500 बिकॉज प्रीवेलिंग मार्केट वैल्यू इज 1500, दैट व्हाट वी नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और इसीलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि मार्केट की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की इक्वल होगी। अ कंपनी अबंडन्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को अबंडन कर देते हैं व्हेन फ्यूचर यूटिलिटी, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग यूटिलिटी ऑफ एन एसेट ड्रॉप बिलो इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जो जिससे हमने रेवेन्यू प्रोड्यूस करना है उसकी कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, जिसपे वो परचेज किया उससे भी गिर जाए। जैसे अभी चेयर की बात की थी, 2000 की चेयर थी, 2000 की जब चेयर थी तो वो क्या हो गया, 1500 पे आ गई। इसका मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2000, लेकिन अब गिर के ड्रॉप कहां हो गई, ओरिजिनल कॉस्ट है वो 1500 पे आ गई। तो इसका मतलब है हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, लोअर टू कॉस्ट और मार्केट। तो इस टाइम लोअर कौन सी है, कॉस्ट और मार्केट, कॉस्ट इज 2000, मार्केट इज 1500, सो वी रिकॉर्ड 1500। लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लॉस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन लॉस अकर्स, लॉस भी रिकॉर्ड करना है, 500 का लॉस हुआ ऐसे भी रिकॉर्ड करना है, नॉट इन द पीरियड ऑफ सेल, जब वो लॉस अकर हो गया, यानी जब मार्केट वैल्यू उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से लोअर चली गई है तब रिकॉर्ड करना, नॉट जब हमने उसे सेल करना है, बल्कि जब वो उसकी वैल्यू मार्केट से नीचे चली हुई, ओरिजिनल कॉस्ट से सॉरी नीचे चली गई है। Now you can see that there is a certain examples for Eastman Kodak, current assets inventory $679, इन्वेंट्रीज आर स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, ये जो इन्वेंट्री स्टेटेड है ये लोअर ऑफ कॉस्ट में है। द कॉस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज इन्वेंट्रीज इन द is determined by either the FIFO or average cost method which approximates current cost. The company provides inventory reserves for excess, obsolete or slow moving inventory based on change in customer demand. यानी कि कंपनी जो है इन्वेंट्रीज उसकी क्या हो गई, एक्सेस में जाती हैं तो वो एब्सोलीट या स्लोइंग डाउन, उसके लिए वो बकायदा उसके लिए रिजर्व रखे हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और अदर इकोनॉमिक फैक्टर, यानी उसने क्या किया हुआ है, एक इन्वेंट्री रिजर्व रखा हुआ है जिसके अंदर वो बिकॉज एक्सेस की वजह से या एब्सोल्यूशन की वजह से जो भी होता है वो वहीं से रिकवर कर रहा होता है। बेस्ट बाय की एग्जांपल नीचे देखें, करंट एसेट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट यूजिंग ईदर द एवरेज कॉस्ट और FIFO मेथड, यानी ये रिकॉर्ड ही लोअर ऑफ कॉस्ट में हुई है। ऊपर मैन्युफैक्चरिंग थी, यहाँ नीचे कौन सी है, मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्रीज हैं, ऊपर इन्वेंट्रीज कौन सी हैं, दीज आर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्रीज। तो यानी यहां पे भी इवन जो आपने मर्चेंडाइज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ली है उसमें भी आपने एब्सोल्यूशन, एक्सेस और स्लो मूविंग सारों को आपने सेपरेट किया हुआ है। सो दैट मींस देयर इज अ रिजर्व फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज। सीलिंग एंड फ्लोर, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि सीलिंग और फ्लोर क्या होती है। जब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, तो जब रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात की तो हमने कहा वाई टू रिप्लेस इसलिए करना है बिकॉज रिप्लेसमेंट कॉस्ट हैज बीन लोअर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस नीचे आ गई है, तभी होता है ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अदरवाइज तो देयर इज नो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जब सेलिंग प्राइस आपकी नीचे आ जाए या इन अदर वर्ड सेलिंग प्राइस लोअर हो जाए, जब लोअर सेलिंग प्राइस हो जाए तो हम उसे किस तरह वैल्यू करें, उसके लिए दो चीजें यूज की जाती हैं, एक कहलाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू और एक कहलाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। First talking about ceiling and floor, then we come to these things. Why use replacement cost or market? Decline in RC usually means declining selling price. जैसे भी बात की कि 2000 से चेयर कहां चली गई थी 1500, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितने की आ रही है 1500 की, दैट मींस ऑटोमेटिकली उसकी सेलिंग प्राइस नीचे चली गई है। RC allows a consistent rate of gross profit. Replacement cost क्या करता है, allows a consistent rate of gross profit. रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वजह से क्या होता है, आपके पास वो अलाउ कर रहा होता है कि आप कंसिस्टेंट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर सकें। इफ रिडक्शन इन आरसी फेल्स टू इंडिकेट रिडक्शन इन यूटिलिटी देन टू एडिशनल वैल्यूएशन लिमिटेशंस आर यूज्ड। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी यूटिलिटी रिडक्शन को ना बताए, देखिए एक चीज सस्ती हो रही है इसका मतलब है उसकी यूटिलिटी लोगों के बीच में आम होती जा रही है। सेम इज द केस विद मोबाइल, पहले मोबाइल स्टार्ट में जो थे वो लाख के आते थे, फिर आते हैं 10,000 के, फिर अब जो है वो 2-2 हजार के भी आते हैं। व्हाट डज दैट मीन, इट्स नॉट अ बिग यूटिलिटी देन वन,
इट्स नाउ बिकम्स अ नेसेसिटी। तो जब रिडक्शन इन यूटिलिटी होगी तो तो वो चीज क्या बताती है कि दैट मींस आरसी इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी। इसीलिए कह रहा है इफ द रिडक्शन इन आरसी फेल्स टू इंडिकेट द रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट तब रिड्यूस होती है जब यूटिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। देन इफ दैट इज फेल टू डू दैट, देन देयर आर टू अदर limitations exist, that is ceiling net realizable value जो भी मैं बात कर रहा था, फ्लोर net realizable value less normal profit margin, यानी कि दो एडिशनल वैल्यूएशन लिमिटेशंस लगानी पड़ती हैं उस पे जब अगर उसकी यूटिलिटी भी कम ना हो रही हो। इन दैट मीन्स कि हम लोग एक लिमिट्स बनाएंगे जिसके अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मूव कर सकती है, इससे ऊपर मूव नहीं करेगी, और अगर करेगी तो उससे हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, वी रिमेन्स एट द कॉस्ट मेथड। Now you can see that lower of cost or market net realizable value is the estimated selling price in an ordinary course of business, यानी estimated selling price है in ordinary course of business, less reasonably predictable cost of completion of disposal। यानी किस तरह आ रही है, NRV is the estimated selling price, जो भी selling price है उसमें से माइनस करेंगे any course जिसमें यूं समझ लें हम predictable cost of कंप्लीशन एंड डिस्पोजल, उसमें से हम माइनस करेंगे। ऑफन रेफर टू एज नेट सेलिंग प्राइस, यानी कि जो हमने जितने की हमने प्राइस उसमें बेचना है उसमें से जो उसे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड डिस्पोजल है वो उसमें से माइनस कर दें तो वी हैव अ नेट सेलिंग प्राइस। कैसे आ रही है, इन्वेंट्री सेल वैल्यू कितनी थी, 1000 की थी, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड डिस्पोजल कितनी है, दैट इज 300, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड डिस्पोजल इज ऑफ 300। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 700, लेस अलाउंस फॉर नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन, यानी नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन को हम माइनस कर देंगे। तो दैट वी हैव टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड अदर वन इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। यू कैन सी दैट नाउ वन इज सीलिंग एंड वन इज फ्लोर। The difference between them exists of only of normal profit margin, यानी आप अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ही मूव करा सकते हैं, इसके अलावा मूव नहीं करा सकते हैं। लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, व्हाट इज द रैशनल फॉर सीलिंग एंड फ्लोर लिमिटेशन, क्या रैशनल है सीलिंग और फ्लोर लिमिटेशन के बीच में। हम लोअर टू कॉस्ट मार्केट मेथड है, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, या तो कॉस्ट पे जाओ या मार्केट पे जाओ। लेकिन जब मार्केट पे जाओ तो मार्केट के अंदर दो कंडीशन है, या तो फ्लोर है या सीलिंग है। फ्लोर क्या है, एनआरवी लेस प्रॉफिट मार्जिन, और सीलिंग क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो कहता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है या तो सीलिंग तक जा सकती है या फ्लोर तक जा सकती है, यानी इसी के बीच में रहेगी, और वही रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो भी रहेगी वो आपने क्या यूज कर लेनी, मार्केट की यूज कर लेनी है। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू रिमेन देयर विद इन द नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप इस नॉर्मल प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट एनआरवी लेस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन से नीचे जाएंगे तो तब आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। मींस टू से कि रियल नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कम नहीं होना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से कोई चीज नहीं देनी, इतनी रिप्लेस नहीं करनी कि वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू से नीचे चली जाए। उससे या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू तक रहना है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तक रहना है, यानी इससे नीचे अगर जाएगी तो वहां पे हमें लॉस शुरू हो जाएगा। तो दैट मींस वी हैव जस्ट डिफाइंड द रेंज एनआरवी टू एनआरवी लेस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन, यानी हमने जो पोर्शन है नॉर्मल प्रॉफिट का उसी के अंदर हमने प्ले कर सकते हैं, उसके अलावा हम प्ले नहीं कर सकते। Limitations are there. Ceiling prevents the overstatement of value of absolute damage, यानी सीलिंग किसको है कि बहुत ज्यादा ओवरस्टेट करने से रोक देती है, और सॉफ्ट वॉन इन्वेंट्रीज जो बिल्कुल किसी काम की नहीं रही है, और फ्लोट डेटर्स अंडरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वो ज्यादा अंडरस्टेट को भी रोकता है, एंड ओवरस्टेटमेंट ऑफ लॉस इन करंट पीरियड अंडरस्टेट कम को भी रोकती है कि बहुत ज्यादा आप इन्वेंट्री को अंडरस्टेट ना करें, और ओवरस्टेटमेंट ऑफ लॉस इन करंट पीरियड को भी रखते हैं। बिकॉज जब आपने इन्वेंट्री ले ली या फ्लोर पे चले गए, फ्लोर पे जब आप गए तो आप अगर उससे नीचे जाएंगे तो इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री को रियलाइजेबल से नीचे कर रहे हैं, एंड दैट लीड्स टू द ओवर स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन करंट पीरियड। Now, lower of cost of market. How LCM works? Lower to cost market works. Individual terms, you can see that food, there is a term. Now, these are the inventories. Spinach, carrot, cut beans, peas, mixed vegetables. These all are there. Costs are there. 80,000, 100,000, 50,000, 90,000, 95,000. These all are the cost.
नाउ व्हाट वुड बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वहां फर्स्ट में देखें स्पिनिच में 88,000, तो दैट मींस रिप्लेसमेंट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू इज हायर. Carrot 100,000, that is 90,000, now that got reduced. Cut beans 50 to 45, that also got reduced. 90 to 36,000, that also got reduced. And 95 to 10, that got increased. तो net realizable value कैसे निकलती है? Net realizable value of ceiling कितनी आ रही है? 120,000. कितनी आ रही है वो? 120,000, 100,000, 40,000, 72,000, 92,000. Net realizable value less नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन. तो वैल्यूज क्या आ रही है यहाँ पे? दैट इज 104,000, 70,000, 27,000, 48,000, 80,000. तो डेजिग्नेटेड मार्केट वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं इसमें वो देखिएगा. 104,000, क्यों? 104,000 इज योर फ्लोर के करीब आ रही है. एंड देन फाइनल इन्वेंट्री वैल्यू इज 80,000. देन 90,000 इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वी यूज इट 90,000. एंड देन we have 40,000, then 40,000 remains the same, then 48,000, 48,000, then 92,000, there is 92,000, that is 50,000. Now what's the matter behind this whole table? गौर से अगर आप देखें इसके अंदर किया क्या कि यहां तो आपके पास 88,000 रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी जिसमें आपने सीलिंग फाइंड की और फ्लोर फाइंड किया. 120 is your ceiling and 104 is your ओवरऑल फ्लोर. अब अगर डेजिग्नेटेड मार्केट वैल्यू पिक करेंगे तो कौन सी? लोअर टू कॉस्ट और मार्केट पे जाएंगे ना. तो लोअर ऑन द मार्केट साइड कौन सी है? 104 है, तो हमने 104 है, लेकिन कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 80,000. सो लोअर टू कॉस्ट और मार्केट कौन सी हो गई? 104 या 80. तो हमने कौन सी पिक की? 80. द नेक्स्ट सेक्शन देखें. नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है? 100,000. और नेट रियलाइजेबल सीलिंग कितनी आ रही है? दैट इज ऑफ फ्लोर. नीचे आ रही है किसकी? फ्लोर की आ रही, वो है 70,000. एंड 90,000 लाइज बिटवीन दैट. 90,000 इनके बीच में ही लाई करता है. ऊपर वाले में 88,000 उनके बीच में आ ही नहीं रहा था. देखें 88,000 थी ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हमें लिखना चाहिए था, लेकिन 88,000 120 और 104 में बीच में ला ही नहीं कर रहा था. सो दैट मींस वी डिडंट गो फॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वी गो फॉर कॉस्ट 80,000. लेकिन इस केस में देखें तो हमारा जो 90,000 है रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो 100 और 70 के बीच में लाई कर रहे हैं. सो दैट मींस वी यूज 90,000 एज अ फाइनल इन्वेंट्री वैल्यू. Same is the case on the lower level. You can see that 50 and 45. Now there is two things, 40 and 27,500. यहाँ पे भी दो चीजें आ रही है, सीलिंग आ रही है, फ्लोर आ रही है, एंड द वैल्यू वुड बी 40,000. यहाँ पे हम कौन सी पिक कर रहे हैं? 40,000 हम वैल्यू को पिक कर रहे हैं. Then you can see that 36,000 is the replacement cost, 72 and 48,000. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम किसको पिक करेंगे? फ्लोर को. Now अब ये देखें आप, ये जो लास्ट टू थे 50 और 45,000. Now 45,000 is also not coming in the net realizable value. नहीं ले रहे हैं हम उसमें, ना ही उसकी सीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, ना उसके फ्लोर को फॉलो कर रहे हैं. इसका मतलब है ये किस में लाई कर रहा है? दैट इज आउट ऑफ द फ्लोर. तो हम लोग इसको किसको पिक करेंगे? हम उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को पिक करेंगे, बिकॉज लोअर इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट. जबकि फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज हायर देन कॉस्ट, तो विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सी थी? कॉस्ट थी, उसमें पिक किया है. प्लस साथ ही क्या हो रहा था? 88,000 आपके नेट रियलाइज सीलिंग और फ्लोर में लाए नहीं कर रहा था. So that's why we didn't put it and we use 80,000. And in the down you can see that it's 90,000, 90,000. Another thing is that 50 and 45,000 जब आया था तो उस वक्त हमारा 45 उस रेंज में लाई नहीं कर रहा था. But still the market value is 45. So we didn't use 45, we used the ceiling and floor. So lowest कितनी आ रही, सीलिंग कितनी आ रही थी? That is 40. 40 से ऊपर आप चार्ज ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट का इशू क्रिएट करेगा. तो हम 45 की बजाय किसको चार्ज करेंगे? 40 को चार्ज करेंगे. इन 90 एंड 36 वी हैव 32 एंड 48. अब लोअर साइड पे जाना है ना, तो लोअर वो कितनी हो गई? 36 हो गई. बट वी डिडंट गो फॉर 36, वी गो फॉर 48, बिकॉज 48 से नीचे जाएंगे तो हमारी लिमिटेशन से बाहर चले जाएंगे और हम अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं जा सकते. लास्ट में देखिए 95,000 एंड 105, यहाँ स्टिल इंक्रीज कर गई है. यहाँ पे रेंज क्या आ रही है? 92, 80. बेशक जो मर्जी रेंज हो, कॉस्ट लोअर कौन सी? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट. तो लोअर इज कॉस्ट, so we use cost over here. So that is our final inventory value. Now lower of cost और market, method of applying LCM. LCM को कैसे अप्लाई किया जाता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉस्ट को निकाला हुआ हमने, किसकी, स्पिनिच, कैरेट, कट बीन्स, टोटल फ्रोजन, कैंड, पीस, मिक्स वेजिटेबल, टोटल कैंड, हमने यहाँ पे अलग अलग कर ली। डेजिग्नेटेड मार्केट्स भी निकालनी। नाउ लोअर टू कॉस्ट मार्केट को कैसे एंटर करें, इंडिविजुअल टर्म्स। फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 80,000 की आ रही है, $80,000। उसके बाद क्या आ रही है, 90,000 आई है। उसके बाद कौन सी, वहां पे फर्स्ट में कौन सी देखें, डेजिग्नेटेड मार्केट हमने अलग की हुई, कॉस्ट अलग की हुई है। विच वन इज लोअर, कॉस्ट और डेजिग्नेटेड मार्केट, 80,000। देन वी हैव 90,000, आफ्टर दैट वी हैव 40,000 एंड देन 48,000, देन 9200, और 9200 के बाद हमने कहा जी दैट इज ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। उसके बाद हमने टोटल करते जा रहे हैं, 80,000, 90,000, 40,000, तो ये कितने हो गए, दैट इज ऑफ 230,000। कितने हो गए ये, 230। क्यों, यहां नीचे देखें टोटल फ्रोजन में लोअर कौन सी आ रही है, 230,000 और 234,000, तो हमने 230,000 को पिक कर लिया। एंड देन वी हैव 140,000, लोअर कौन सा था, 185,000 और 140,000, दैट इज 140,000। कितना था ये, 140,000, उसी को हमने पिक किया और यहां पे हमने कहा जी 140,000। देखें यहां पे आप टोटल फ्रोजन को देखें, 230,000, 234,000, विच वन इज लोअर, दैट इज 230,000। एंड उसके बाद टोटल केंड को हम 185,000 था और 140,000 था, किसको पिक किया, 140,000 को हमने पिक कर लिया और उसी को हम लोगों ने यहां पे यूज किया है, यानी दैट इज द सेम व्हाट वी हैव यूज्ड। Now total inventory we have, you can see that. Now lower of cost or market, recording market instead of cost. Ending inventory cost पे थी 82,000, ending inventory market पे थी 70,000। देखिए जब मैंने उसकी कॉस्ट ही चेंज कर दी, पहले कॉस्ट पे महंगी थी, मार्केट पे सस्ती हुई, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और वो कितना डिफरेंस आएगा, एडजस्टमेंट टू एलसीएम आएगा, उससे क्या कहेंगे हम, एडजस्टमेंट टू एलसीएम। एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे 82 की निकल रही है, एंडिंग मार्केट वैल्यू मार्केट पे आ रही है 70 की आ रही है, 12 का आ गया एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब है 12 की हमें क्या आ गया, लॉस की मेथड पे आ गया। लॉस ड्यू टू डिक्लाइन इन इन्वेंट्री 12,000 थी, एंड अलाउंस फॉर टू रिड्यूस इन्वेंट्री, जो हमने बात की थी स्टार्ट में रिजर्व की, और रिजर्व किसका जी, जो हम लोगों ने इन्वेंट्री के लिए रखा हुआ होता है, दैट इज द रिजर्व, अलाउंस टू रिड्यूस द इन्वेंट्री। एंड देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 12,000 एंड इन्वेंट्री 12,000। दो मेथड है, या तो लॉस रिपोर्ट करें या ऐसे सीधा सीओजीएस में डाल दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दें। लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशंस कैसे आ रहे, लॉस मेथड और सीओजीएस में कैश वही है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री कितनी आ रही है, 70,000 आ रही लॉस मेथड में, वहां कितनी आ रही 758 आ रही, बिकॉज सीओजीएस इज बीइंग अकाउंटेड फॉर, उसमें इन्वेंट्री को हमने कम कर दिया है। नीचे आए, प्रीपेड उतने ही रहे हैं, लेकिन लेस इन्वेंट्री अलाउंस किस में ऐड हो रहा है, लॉस मेथड में, जो हमने यहाँ पे लॉस मेथड में इन्वेंट्री के लिए एडिशनल रिजर्व रखा था, एंड बोथ हैव द सेम वैल्यू। दैट इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, वहां देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो गई हैं, और नीचे जो लॉस मेथड में एडिशनल से लॉस ऑफ इन्वेंट्री एक्सपेंस की तरह शो हुआ है, यानी वी हैव जनरेटेड द एक्सपेंस फॉर इट, और उसी लिए वहां पे 12,000 शो हो रहा है, जबकि वहां पे सीओजीएस ही चेंज हो गया, दैट इज 132,000। लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, रेमर कंपनी मैन्युफैक्चर डेस्क, द कंपनी अटेम्प्ट टू ऑब्टेन 20% ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन अब कितना है यहाँ पे, ग्रॉस मार्जिन 20% ऑन सेलिंग प्राइस एट December 31st 2012 the following finished desk appears in the company account. 2010 catalog selling price is 450,000, FIFO cost per inventory list 470, estimated current cost for manufacture 460, now it's lower, sales commission and estimated cost of disposal 50 and catalog selling price is 500, यानी कि कैटलॉग कितने का सेल हो रहा है, 500 का हो रहा है, जिसकी हम लोगों ने कैटलॉग सेलिंग प्राइस 2013 में कितनी रखी है, 500, और 2012 में कितनी थी, 450। एंड आप जो करंट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर है वो कितनी रखी हुई है यहाँ पे आपने, 460, जो 2013 में यूज हो सकती है। नाउ एक चीज वो जो उसने 2012 में 450 की बेची थी, अब वो कितने की बेच सकता है, 500 की बेच सकता है, और उसी को 2013 में कितने की खरीद सकता है, 460 की खरीद सकता है। पहले कितने की खरीद रहा था, 470 की खरीद रहा था। फॉर ऑल द डेस्क अपीयर्स A, B, C and D. 2012 catalog were in effect from November 2012 to the 13th catalog is affected from December 1, 2012.
2012 और December 1 2012 में से वहां से इफेक्टिव है। इंस्ट्रक्शन एट व्हाट अमाउंट शुड ईच 4 डेस्क अपीयर इन द कंपनी डिसंबर इन्वेंट्री, हर एक डेस्क पे कितनी दिसंबर की इन्वेंट्री आनी चाहिए। यू कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच डेस्क 480 450 430 60 540 40 and then 900 836 10 80 900 1050 96 960 100 1000 130 1200 these all are the things। और सब में देखें तो उसकी जो FIFO की कॉस्ट पर इन्वेंट्री है वो तो है ही है, उससे भी कम पे आ रही है एस्टिमेटेड करंट कॉस्ट ऑफ टू मैन्युफैक्चर जो 2013 में पढ़नी है, वो भी हर एक दफा में FIFO से लोअर आ रही है। So that means it has lower market value. So that means there is a lower to cost method should be used for valuations. Now front desk inventory A को लेते हैं। A 470 estimated cost to manufacture 460, commission कितना है 50 and cost of selling कितनी है 500। cost कितनी है 470। सो हमारे पास इसका मतलब है 470 यहाँ है और उसके पास कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है उसे 460 आ रही है। सीलिंग लगाएंगे तो 500 उसकी सेलिंग थी, उसमें से माइनस किया हमने डिस्पोजल की तो 450 आया, और जब उससे नीचे जाएंगे तो 20% सेल्स मार्जिन था तो यहाँ पे हमने 27 लगाया तो 350। वो कहता है जो आपकी सीलिंग है वो 450 और 350 के बीच में ही रहेगी। नाउ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 460 जो इस रेंज में नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये अपर साइड पे जा रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी 460, लेकिन हमारे पास हम मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं अपनी रेंज पे वो है 450। सो वी यूज 450, हम 450 को यूज करेंगे एंड द एलसीएम कॉजेस ऑफ 450, 470 के बजाय वो 450 यूज करेगा। एंड फॉर बी द सेम थिंग विल हैपन, यू कैन सी दैट 540 की बेचेगा 60 माइनस की 480 आ गया एंड द लोअर वन इज 372। नाउ विच वन इज लोअर, ये तो सेंटर में आ रहा है रेंज में आ रहा है, तो वी यूज रिप्लेसमेंट कॉस्ट और वो कितनी आएगी 430, बिकॉज ये उस रेंज में लाइक कर रही है। अगर ये उस रेंज से ऊपर चली गई होती तो हम ऊपर अपनी सीलिंग को पिक कर लेते, अगर उस रेंज से नीचे की तरफ से बाहर चली गई होती तो हम नीचे से फ्लोर को पिक कर लेते। सो यहां पे आ गया आपके पास आंसर 430। सेम इज द केस विद सी, यू कैन सी दैट ऑन द सी साइड then 820 is the ceiling, 640 is the lower and 6110 is the replacement. Again it lies in the range or not, no it doesn't lies in the range because और से देखें 640 से लोअर चली गई है नीचे, यानी 640 से भी नीचे निकल गई है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे ले जाना चाहें तो कितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं 640, बेशक ही 6110 पे चली गई हो। So we remains to the 640 not to the 610 because 610 is lower than 640 जहां पे इन्वेंट्री का अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट का इश्यू आ जाएगा। So we take 640, that is our range and the LCM is 640. For D you can see that still now 1070 and 830 that is our range, it lies on 1000, that means within the range, so we use 1000 and 1000 is there and LCM is 960 because cost is lower than market value. Use of allowance for multiple period. In general, accountant leaves the allowance account on book. The merely adjust the balance at the end of the next year and to agree with the discrepancy between cost and the lower of market at that balance sheet. On December 31, 2011, inventory cost is 188,000. Inventory to at market is 176,000. Amount required in valuation is 12,000. दोनों में difference देखें तो इतने का ही आ रहा है. And adjustment of valuation account requires balance of this one. Effect on net income definitely जब आपकी overall ये रिडक्शन आएगी तो ये एज अ लॉस आएगी, जिसकी वजह से हमारी नेट इनकम क्या होगी, रिड्यूस कर जाएगी। बिकॉज चाहे हम लॉस मेथड यूज करें या सीओजीएस यूज करें, इन दोनों केस में एट द एंड इनकम नहीं रिड्यूस करना है। नेक्स्ट में देखें 194 187 अगेन 7000 का यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, अमाउंट रिक्वायर्ड इन वैल्यूएशन दैट इज ऑफ 7000। अब 7000 का यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे 5000 amount of valuation account balance that is decreased by 5000, so that becomes increase. Now 173,000 174,000 यहाँ पे अब वो कह रहा है कि amount required in valuation account 0 आ रही है, amount adjustment of valuation account balance कितने की आ रही है 7000 का आ रहा है, so that is got to be the increase. A 182,000 180,000 that becomes 2000 amount required in valuations, that is of 2000 and 2000 is of increase, that is now decrease in
accounts net income. That is the whole thing that is going to be happen. Evaluation of LCM rules. LCM रूल को evaluate भी तो करेंगे, ये क्या इसके अंदर कोई deficiencies exist करती हैं. Expense recorded when loss in utility occurs. Expense कब record होगा? जब loss in utility occur होगा. Profit on sales required at a point of sale. यानी यहाँ expense की recording पे base कर रहा है, वहाँ पे profit on sale recognized at the point of sale. तो दोनों को या तो same level पे होना चाहिए या तो expense के time होना चाहिए या point of sale के ऊपर होना चाहिए था. इन्वेंट्री वैल्यूड एट द कॉस्ट इन 1 ईयर एंड एट द मार्केट इन नेक्स्ट ईयर. इस ईयर की कॉस्ट और नेक्स्ट ईयर की मार्केट पे ही हम डिसीजन करते हैं. ये नहीं करते कि हम इस ईयर की मार्केट और इस ईयर की कॉस्ट पे डिसाइड करें. नेट इनकम इन ईयर ऑफ लॉस इज लोअर. नेट इनकम इन सब्सिक्वेंट पीरियड मे बी हायर देन नॉर्मल इफ एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन सेल प्राइस डू नॉट मटीरियलाइज. कहते हैं नेट इनकम इन द ईयर ऑफ लॉस इज लोअर, यानी नेट इनकम हमेशा लॉस ईयर में लो होती है, बट नेक्स्ट ईयर में इट वुड बी हायर. So that means it is also being a discrepancies के 2 years में आप different चीजें हैं, एक अगले year की चीज पहले पे ही ला रहे हैं. LCM use normal profit in determining inventory issues, which is a subjective measure. अब यहाँ पे कोई normal profit margin की कोई यहाँ पे limits तो नहीं है, कोई procedure तो नहीं है जिसमें हमने normal profit को measure करना है. So that means it could be a subjective measure. वैल्यूएशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू परमिटेड बाय गैप. गैप अलाउ करता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू को. अ कंट्रोल्ड मार्केट विद अ कोटेड एप्लीकेशन टू ऑल. अब क्या पे कंट्रोल्ड मार्केट है ना, बिकॉज हम रेंज बना देते हैं. अब कंट्रोल्ड मार्केट है विद अ कोटेड प्राइस एप्लीकेबल टू ऑल क्वांटिटीज. एक कोटेड प्राइस दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल क्वांटिटीज. नो सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. जब कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ना हो तो तब क्या होगा. टू डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कॉस्ट फिगर. कॉस्ट फिगर ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, यानी यूं कह सकते हैं इस केस में दैट देयर इज अ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या टू डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ कॉस्ट ऑफ फिगर. यानी कॉस्ट ऑफ डिफिकल्ट, जो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है वो बहुत कम है या उसकी इंफॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल है. Now the next valuation basis, valuation using the relative sales value used when buying varying units in a single lump sum purchase. ये कब यूज होगा? जब हम लोग buying weighing units in a single lump sum purchase, different types के units एक ही परचेज में एक ही ऑर्डर में परचेज कर रहे हैं. That is the, you can see that it's a example. You can see that Larsen Realty Corporation purchased a tract of unimproved land for $55. This land was improved and subdivided into building lots at an additional cost of $30,000. These building lots were all of the same size, but owing to different in location were offered for a sale at different price as follow. Operating expense allocated to this project total is $18,200. यानी ये किसका टोटल? इसका 18,200 पे. That was taken example from a book of intermediate accounting, so you can see that over there also. Instruction: calculate the net income realized on this operations to date. यानी कैलकुलेट करें नेट इनकम कितनी रियलाइज हुई है ऑन दिस ऑपरेशंस टू डेट. 1 2 3 3 ग्रुप्स हैं. नंबर ऑफ लॉट्स 9 15 19. These are the lots. Prices per lot this one. Lots unsold at year ends 5 उसकी पड़ी है, 7 इसकी पड़ी है, 2 इसकी पड़ी है. So now what we are going to see the net income realized on operations date. So यहाँ आप देख सकते हैं that is 1 2 3 number of lots 9 15 19. That is price per lot 3,000 4,000 2,000. That is equals to the selling price. क्या करेंगे इसे? प्राइस से मल्टीप्लाई किया, that is become our selling price. Relative sales price कैसे निकलेगी? 27,000 थी, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी? 125,000 थी. तो टोटल आपके पास वेट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं रिलेटिव सेलिंग प्राइस. सेम इज द केस विद 60,000, सेम इज द केस विद 38,000. वी आर डिवाइडिंग इट बाय 125,000. And the total cost is 85,000. कैसे आ रही है? You can see on the back slide that there is a cost of 55,000 and 30,000. So add up to form 85,000. And the cost allocated we have measured, that is of 18,300, 40,800, 25,840. And the cost per lot is 204027201360. And these costs are being used. Lot sold कितनी हुई थी? 4817. प्राइस पर लॉट. टोटल सेल्स आपके पास आ गई हैं. कॉस्ट पर लॉट निकल आई थी आपके पास 20402701,360. सो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
कितनी हो गई है 53,040. कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम 78,000 माइनस 53,040 एंड देन अब ये 78,000 भी कैलकुलेटेड है एंड gross profit is 24,960 and expense is related to 18,200 यानी 78,000 नीचे से पिक किया टोटल सेल से. So then we have a net income of 66,760. Purchase commitments. There is also being a special problem regarding purchase commitment. Generally, seller retains title to a merchandise. यानी सेलर क्या होता है अपना रिटेन करता है टाइटल टू मर्चेंडाइज. बायर रिकॉग्नाइज नो एसेट और लायबिलिटी इफ मटेरियल द बायर शुड डिस्क्लोज कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स इन फुटनोट्स. यानी अगर ये जरूरत है यानी ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो ये फुटनोट्स में शो हो सकता है. इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस एंड द बायर एक्सपेक्ट द लॉसेज विल अकर व्हेन परचेज इज अफेक्टेड, the buyer should recognize liability or a corresponding loss in a period during which decline in price takes place. अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस लो हायर निकलती है और मार्केट की प्राइस ज्यादा है तो और बायर को पता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस हुआ तब क्या होगा आपके पास उसका लॉस हो जाएगा. और when there is a loss that means there is a decline in the your overall net income. So आप ये रिकॉर्ड कब करेंगे when there is a decline in market take place, जब ये डिक्लाइन मार्केट में हो जाए. Now again an illustration you can see that Sid Regis paper signed timber cutting contract to be executed in 2013 at a price of $10 million. Assume further that the market price of timber cutting right on December 31st dropped to $7 million. Sid Regis would make the following entries on December 31st 2012. First one, unrealized holding gain or loss कितना आया फर्क 3 million का. एंड परचेज कमिटमेंट लायबिलिटी कितनी आ रही है 3 मिलियन की. नाउ दैट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ वैल्यूएशंस. ठीक है, यानी जितना भी मार्केट टिम्बर आया क्योंकि उसने क्या किया था कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो इसका मतलब परचेज कमिटमेंट में ही चेंज आ गया तो उसने कितना यहाँ पे रिकॉर्ड किया 3 मिलियन का लॉस या लायबिलिटी रिकॉर्ड किए. अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस में चला जाएगा अनरियलाइज्ड और यहाँ पे लायबिलिटी की तरह वो शो हो जाएगा एज अ करंट लायबिलिटी दैट वुड बी कवर्ड. Then there's a valuation base. You can see when Sid Regis cuts the timber at a cost of $10. $10 पे ये cost recover कर रहा है. It would make following entry. First, purchase inventory 7 million. Then purchase commitment liability 3 million. Then cash is 10 million. जब वो वहाँ पे timber cuts the timber at the cost of $10, it would make the following entry. तो वो ये यहाँ पे entry pass करेगा. Assume the government permitted the Sid Regis to reduce its contract price and therefore the commitment by 1 million. So purchase liability 1 million है और unrealized कितना है वो भी 1 million है. यानी जो लॉस हुआ है उसे गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप अपनी प्राइस लोअर कर लें बाय 1 मिलियन. तो जब प्राइस लोअर हुई तो इसका मतलब है हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई. सो दैट मींस परचेज कमिटमेंट लाइबिलिटी डेबिट हो गई, वो क्रेडिट में बढ़ी थी और यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन का एक्सपेंस भी रिवर्स हो जाएगा बाय 1 मिलियन. Gross profit method of estimating inventory. Substitute Meyer to approximate inventory relies on 3 assumptions because it lies on 3 assumptions. Beginning inventory plus purchases equals total goods to be accounted for. Beginning inventory plus purchases total goods to be accounted for. Goods not sold must be on hand. जो नहीं बिकी हैं वो आपके पास होनी चाहिए. The sales reduced to cost deducted from sum of opening inventory plus purchases. वो कह रहा है जो sales हो reduced to cost हो गई हो deducted from the sum of opening inventory plus purchases equals ending inventory. जितनी की सेल हो गई है, जितनी गुड सेल हो गई वो क्या करेंगे हम beginning inventory plus purchases में से वो sales माइनस कर देंगे. Then we have a ending inventory. So you can see over there that's an illustration. Cetus Corporation has a beginning inventory of $60,000 and purchases $200,000. Beginning inventory कितनी है 60,000 की, purchase कितने की है $200,000 की, यानी $60,000 $200,000 both at cost, selling at selling price of $280,000. The gross profit on selling price is 30%. Cetus applies the gross margin method as follow. Beginning 60,000, परचेज 200,000, गुड्स अवेलेबल 260,000, सेलिंग कितने की हो रही है एट सेलिंग प्राइस 280,000 की हो रही है. तो पीछे कितना बड़ा लेस ग्रॉस
प्रॉफिट, यानी दोनों चीजें माइनस की, देन वी हैव अ सेल्स एट कॉस्ट 196,000 और अप्रोक्सीमेट इन्वेंट्री कितनी हुई 260,000 माइनस 196,000 दैट इज 64,000. दैट इज द मेथड नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट मेथड. कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस परसेंटेज. ग्रॉस परसेंटेज कैसे कंप्यूट की जाती है? इट्स सिंपल. इफ ग्रॉस सपोज गिवन इज 20% ग्रॉस प्रॉफिट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 0.20 that is 1% minus 0.20 that is of 25%. Percentage markup is calculated. 25% that is same 100% minus 25%. यानी यूं समझ लें कि जितनी भी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे डिफरेंस के साथ. मीन सपोज इन एन सिंपल केस है 100 सपोज 20% ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसका मतलब 80% एक्सपेंसेस है ना. तो इसका मतलब है इफ आई एम गोइंग टू divide 20% by 80%, so then we have a percentage markup on cost, यानी कि percentage markup on cost आ जाएगा हमारे पास. Same is the case with 25% हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, उसे अगर हम डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग यानी कि 0.75 एक्सपेंसेस है तो देन वी हैव अ परसेंटेज मार्कअप, यानी ये हमारे पास परसेंटेज मार्कअप है. लेकिन अगर मेरे पास परसेंटेज मार्कअप गिवन है तो इसका रिवर्स हो जाएगा फार्मूला फॉर फाइंडिंग द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस. Now, example there exists that Estire company uses the gross profit method to estimate inventory for monthly reporting purpose. Presented below is the information for a month of May. मंथ ऑफ मे की इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है. इन्वेंट्री मे 160,000, परचेज 640, फ्रेट इन 30,000, सेल्स 1 million, सेल्स रिटर्न 70,000, परचेज डिस्काउंट 12,000. कंप्यूट द एस्टिमेटेड इन्वेंट्री एट May 1 assuming that gross profit is 25% of sales. Compute the estimated inventory at May 31st assuming that gross profit is 25% of cost. यानी कितना है gross profit? 25% of cost. So that is what we have to do. First one, May 1 की इन्वेंट्री एट कॉस्ट 160,000, परचेज एट कॉस्ट 640, परचेज डिस्काउंट माइनस होता है वो माइनस किया. फ्रेट इन ऐड होगा बिकॉज किसका फ्रेट लगा है? परचेज को लाने में. सो दैट वी हैव टोटल गुड्स अवेलेबल 818,000. सेल्स एट सेलिंग प्राइस 1 million माइनस किए सेल्स रिटर्न 930,000 लेस ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ 930,000 दैट इज 232,500. 930,000 माइनस 232,500 दैट वी हैव सेल्स एट कॉस्ट दैट इज नोन एज 697,500. नाउ अब सेल्स एट कॉस्ट कैसे आती है? उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट की आप निकाल देते हैं. सो एवरीथिंग सेल्स एट कॉस्ट एंड एवरीथिंग गॉट्स ऑन देयर cost. So that is the whole method of gross profit, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? Estimated entries assuming gross profit of 25% of sale. यानी net sales less gross profit तो हमारे पास क्या आ गई? Sales at cost, यानी cost of goods sold आ गई. उसका दूसरा नाम होता है sales at cost, यानी कितनी cost की goods sale हो गई हैं. So that is known as approximate inventory. We have 88,818,000 minus 697,500. We have approximate inventory. So that what we have a procedure for gross profit method. Here you can see that 20% कैसे निकला? 25%, 100% into 20% of sales and there it is 20% of sales. जो हमने पिछली स्लाइड में फार्मूला पढ़ा था that is used. Now gross profit method, evaluation of gross profit method, disadvantages भी कुछ हैं. Provides estimate of ending inventory, estimated ending inventory provide करता है. Uses sparse percentage in calculation, पिछले साल की यूज कर रहा होता है percentages जैसे gross profit की. The blanket gross rate may not be represented, एक आम सा यूज किया हुआ या आपके सामने सजाया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मेथड जो है या रेट जो है वो यूज किया जाता है. नॉर्मली अनएक्सेप्टेबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस. गैप रिक्वायर्स अ फिजिकल इन्वेंट्री एज एडिशनल वेरिफिकेशन. ये गैप इसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है एडिशनल इन्वेंट्री इज मच बेटर. Now retail inventory methods are there. A method used by retailer to value inventory without physical account, यानी वो method used by retailer to value inventory without physical account by converting retail price to cost. Requires retailer to keep total cost and retail value of goods purchased. टोटल कॉस्ट एंड रिटेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये रिक्वायर करता है कि ये करना चाहिए. कीप टोटल कॉस्ट एंड रिटेल वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, टोटल कॉस्ट एंड रिटेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सबके रिकॉर्ड रखें. एंड सेल फॉर अ पीरियड. मेथड कौन कौन से? कॉन्वेंशनल मेथड, कॉस्ट मेथड, लाइफो मेथड, डॉलर वैल्यू लाइफो मेथड फॉर रिटेल इन्वेंट्री मेथड. नाउ यू कैन सी दैट हियर इज द एग्जांपल.
Fukui Incorporation uses the retail inventory method to estimate ending inventory for its monthly financial statement. The following data pertains to single department for a month of October 2013. Beginning inventory October 1 की है, cost है, retail दी है, cost कितनी उसकी थी 52, retail 78, purchases 272, 423. Freight in 16,600, purchase return 5,600, 8,000. Then additional markup is given, markup cancellations given, markdown is given, normal spoilage is given, sales is given. Instruction: prepare a schedule computing estimated retail inventory using following method: conventional and cost method. Now you can see that beginning inventory 52,000, 78,000, purchases दोनों की अलग अलग लिख ली, freight भी लिख लिया, purchase return भी लिख लिया, markup भी लिख दिया. We have current year additions आ गई. Goods available for sale कितनी हैं जी, 335,000 की आई हुई हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही हैं, 500,000 की आ रही हैं. Markdown net 3,600 आ गया, and that means normal spoilage is 10%, 10,000. Sales 390,000, and ending inventory of retail is 96,400, and in ending inventory at cost 96,400, that is 67%. और से देंगे 67% कहाँ से आया? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिख ली थी तो कॉस्ट पे कितनी 335 की निकली, रिटेल पे कितनी है 67%, 500 की है, तो जो डिफरेंस है यानी 335 500 कितने परसेंट है, तो वो निकला था 67%. सो इन दैट मींस एंडिंग इन्वेंट्री 67% की वहां पे एंटर होंगी, तो दैट मींस 96,400 मल्टीप्लाई बाय 67, तो दैट मींस 64,588, दैट इज योर एंडिंग इन्वेंट्री, जो हमने इसमें भी सब कुछ किया है और वही लेके हम लोग आगे जाते जा रहे हैं. So that includes that 283 plus 52, that means 335. You can say 422 plus 78, that's 500,000. तो हमारे पास जो कंप्लीट आ रही थी, तो ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ रही थी, जिसमें हमने निकाली थी एंडिंग इन्वेंट्री 96,400 और से मल्टीप्लाई किया 67% से, दैट वी हैव 64,588. नाउ अगेन प्रॉब्लम कॉस्ट मेथड पे आ रही है, अगेन उसी पे चीज पे हम लोग आ रहे हैं. कैसे हुआ है 552 78 सेम चीजें सब कुछ सेम रही हैं. मार्कडाउन नेट जो था वो अब ऊपर चला गया है एंड दैट मार्कअप नेट भी आ गया इसके अंदर, तो दैट मींस 335 वो तो ओल्ड रहा है कॉस्ट का, लेकिन यहाँ पे क्या एंटर हो गया 496,400, यानी कुछ अमाउंट से ये रिड्यूस हो गया. 500 से कहाँ आ गए 496,400, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ 36,000 जो बाद में था वो यहाँ पे भी एड अप हो गया है. और यहाँ पे नॉर्मल स्पॉइलेज लेस सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, और हमारे पास इन्वेंट्री अभी भी कितनी आ रही है 96,400, और 96,400 को मैंने किस परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया 67.49% से, तो वी हैव 65,058. नाउ स्पेशल आइटम्स रिलेटेड टू रिटेल मेथड. फ्रेट कॉस्ट होती है, परचेज रिटर्न्स आते हैं, परचेज डिस्काउंट एंड अलाउंसेस होते हैं, ट्रांसफर इन होते हैं, ये आपने ऑलरेडी बैचलर साइड पे चीजें पढ़ी हुई हैं. नॉर्मल स्पॉइलेज का मतलब है जो ऑलरेडी आपको पता है इतनी स्पॉइलेज होनी ही होनी है. एबनॉर्मल शॉर्टेजेस आती हैं, एम्प्लॉय डिस्काउंट आता है. दीज ऑल थिंग्स आर द स्पेशल आइटम्स रिलेटेड टू रिटेल मेथड. स्पेशल आइटम्स देखें यहाँ पे, जैसे कॉस्ट की मेथड और रिटेल का दिया, परचेज रिटर्न इज स्पेशल मेथड, एबनॉर्मल स्पॉइलेज इज स्पेशल मेथड, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स आर अ स्पेशल वन, एम्प्लॉयज डिस्काउंट, नॉर्मल शॉर्टेजेस, these all are included in the special item. Normal spoilage and normal shortage both are included in special items. Now evaluation of retail inventory method widely used for the following reason: to permit the computation of net income without physical count of inventory. Physical count की जरूरत नहीं पड़ती, without उसके भी ये यहाँ पे नेट इनकम निकल आती है. कंट्रोल मयर्स इन डिटर्मिनिंग इन्वेंट्री शॉर्टेजेस, कंट्रोल करता है मयर्स को इन डिटर्मिनिंग इन्वेंट्री शॉर्टेजेस से कितनी इन्वेंट्री शॉर्ट होने के चांसेस हैं. रेगुलेटिंग क्वांटिटीज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन हैंड, यानी क्वांटिटीज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन हैंड है उसको ये रेगुलेट करते हैं, और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. सम कंपनीज रिफाइन द रिटेल मेथड बाय कंप्यूटिंग इन्वेंट्री सेपरेटली बाय डिपार्टमेंट्स और क्लास ऑफ मर्चेंडाइज विद सिमिलर ग्रॉस प्रॉफिट. Now there is a presentation and analysis. Presentation of inventories. Account standard requires disclosure of composition of inventories, inventory financing arrangements and inventory costing method employed. यानी accounting standards में ये चीजें required हैं to present in the annual report.
कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मेथड फ्रॉम वन पीरियड टू एप्लीकेशन, यानी आपको जो मेथड अप्लाई किया वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और उसी कंसिस्टेंट मेथड के साथ ही हमें चलना चाहिए। मैन्युफैक्चरर शुड रिपोर्ट द इन्वेंट्री कंपोजिशन इधर इन बैलेंस शीट और इन सेपरेट शेड्यूल ऑफ नोट, यानी कि उसे रिपोर्ट करना है इन्वेंट्री कंपोजिशन किस किस तरह की आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, उस चीज को हम लोगों ने बैलेंस शीट में या सेपरेट शेड्यूल में शो करना जरूरी है। सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट रिलेटिंग टू इन्वेंट्री, कोई हमने फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की है फॉर इन्वेंट्री, वो हमने लाजमी रिकॉर्ड करनी है। कंपनी शुड प्रेजेंट इन्वेंट्रीज प्लेज्ड एज कोलेटरल, कहीं हमने इन्वेंट्री दे के कोई लोन लिया हुआ है वो भी शो करना है, और उस लोन को कितना लिया हुआ है, यानी हमने कहा जी ये हमारी इन्वेंट्रीज भरी पड़ी है, इस रूम को आप इसे प्लेज करें, ताला डालें, ये आपका हक है, लेकिन मुझे इसके अगेंस्ट इतना लोन चाहिए। दैट मीन्स आई हैव प्लेज्ड माई ओवरऑल इन्वेंट्रीज basis on which it states inventory amount lower of cost or market and the method used in determining cost। किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि ये मार्केट से और कॉस्ट लोअर टू कॉस्ट ऑफ मार्केट से या कॉस्ट से लोअर है, कौन सी ज्यादा लोअर है, यानी कि लोअर टू कॉस्ट और मार्केट, कॉस्ट लो है या मार्केट लो है, किस बेसिस पे डिसाइड किया, वो बेसिस क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है ना। और उससे पहले क्या मेथड यूज हो रहा था, इधर फाइफो, लाइफो, एवरेज कॉस्ट, कौन सा यूज हो रहा था, वो आपने कंप्लीटली एक्सप्लेन डिटेल्स देनी है इन एनुअल रिपोर्ट्स। नाउ मम्फोर्ड ऑफ वायोमिंग्स, उसकी यहाँ पे दी हुई है, देखें लाइफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करें, लाइफ फीडर कैटल एंड फीड, लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो यूज कर रहा है विच इज बिलो अप्रोक्सीमेट मार्केट, लाइफ कैटल लोअर ऑफ प्रिंसिपली आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑन मार्केट, वो कितनी है 1,240,500, लाइफ शीप एंड सेपली लाइफ फाइफो यूज कर रहे हैं दैट इज 674,000, और प्रिंसिपल ड्रेस्ड मीट एंड बाय प्रोडक्ट प्रिंसिपली एट मार्केट लेस अलाउंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंस दैट इज 362,630। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब देखिए ब्रैकेट में पूरी डिटेल दी हुई है कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कौन सा लोअर टू कॉस्ट और मार्केट में यूज हो रहा है, कौन सा लाइफो पे, कौन सा फाइफो पे, हर चीज का एक्सप्लेनेशन देनी है इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट। दैट इज another example, you can see that in inventory, maturing spirit, other raw material supplies, work in process, these all things are included in the current asset and total inventories. Here in the down you can see that in the red what is written, in accordance with the generally recognized trade practices, maturing spirit inventories are classified as current assets, although the majority of these inventories ordinarily will be sold within 1 year due to the duration of aging process। यानी जितनी भी हमारे पास ये स्पिरिट मैच्योरिंग स्पिरिट वाली हमारी इन्वेंटरीज है, इनको हम लोग करंट एसेट में ही शो करते हैं, बिकॉज कुछ जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म पे होती हैं और कुछ जो विद इन 1 year सोल्ड भी हो जाती हैं। Analysis of inventories, there are common ratios used for the management like inventory turnover and average days to sell the inventories. That means you can see that it's an example illustration measures the number of time on average the company sell the inventories during the period. In its 2009 annual report, Kellogg's company reported beginning inventory of $897 million and ending inventory $9,110 million, and cost of goods sold is $7,184 million for the year. So what we have 7.95 times the inventory would be turnover, means to say आप पहले दिन अगर इन्वेंट्री सेल बनाई आपने, फिर सेल हुई, फिर बनाई, फिर सेल हुई, इस तरह के साइकिल पूरे साल में कितने चले, तो the cycles are 7.95 times, यानी ये साइकिल 7.95 टाइम ऑलमोस्ट 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। एवरेज डेज टू सेल इन्वेंट्री सिंपल है, जो भी आपके पास आया है इन्वेंट्री टर्नओवर उसको डिवाइड, उससे 365 डेज को उससे डिवाइड कर देंगे, so that we have a 46 days on average is the average days to sell inventory, यानी इतने दिनों में आपकी इन्वेंट्री सेल हो जाती है on the year on average। LIFO रिटेल मेथड, प्राइमरी रीजन टू यूज LIFO, टैक्स एडवांटेज होता है इससे, रिजल्ट इज बेटर मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, द यूज ऑफ LIFO रिटेल इज मेड अंडर 2 assumptions, स्टेबल प्राइसेस हो और फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हो, यानी कि या तो स्टेबल प्राइसेस हैं तो तब LIFO को इतना यूज कर सकते हैं, बट FIFO इज मच बेटर, बट इन द फ्लक्चुएटिंग प्राइस आई थिंक LIFO इज मच बेटर। यानी कि दो चीजें, या तो एक स्टेबल प्राइस लेवल इंक्रीज करता जा रहा है स्टेबल लेवल पे, यानी कि यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा है प्राइस में, तब LIFO बेटर है, या फ्लक्चुएट हो रही है प्राइसेस तब भी LIFO बेहतर है।
एंड दीज आर नोन एज द अजम्पशंस बिहाइंड लाइफो, कि प्राइसेस हमेशा स्टेबल रहती हैं, यानी यूनिफॉर्म इंक्रीज आता है, और फ्लक्चुएटिंग प्राइस रहती हैं. Stable prices, LIFO retail method. A major assumption of LIFO retail method is that of markups and markdown applies only to goods purchased during the current period and not at the beginning of inventory. यानी कब markup markdown कब अप्लाई होता है? Goods purchased पे अप्लाई होता है, not on the current period beginning inventory. Beginning inventory is excluded from cost to retail percentage. किसमें से माइनस होती है? cost to retail percentage में उसका कोई रोल नहीं होता. Here is the illustration. You can see that LIFO रिटेल मेथड स्टेबल प्राइसेस हैं. क्या आ रहा है यहाँ पे? नेट परचेजेस ड्यूरिंग पीरियड दिस मच, नेट मार्कअप्स देयर इज, नेट मार्कडाउन्स दिस वन, टोटल एक्सक्लूडिंग बिगिनिंग इन्वेंटरी 346,500, 495,000 is there. Total including beginning inventory there is a total. Net sales during the period माइनस की तो ending inventory हमारे पास आ गई है. Establishment of cost to sale percentage, that means 346,500 and 495,000 को डिवाइड किया तो हमारा परसेंटेज है 70%. So मार्केट पे अगर लाना है एंडिंग इन्वेंट्री को तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 56,000 को 70,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Now ending inventory at LIFO cost stable price. Now you can see that retail price 56,000, see 2011, 2012. यहाँ पे क्या लाए हम लोग? रिटेल में 45,000 2011 में, 11,000 सेकेंड में आया. यानी हमने लेयर्स अलग अलग कर लिए. कितनी जो है वो पिछले साल की पड़ी है 2011 की, और कितनी इस साल की पड़ी है. यानी कितनी इस साल परचेज की थी और कितनी पिछले साल की परचेज की थी, हमने सेपरेट कर ली है. परसेंटेजेस यहाँ पे निकली तो 56,000 आ रही है. फर्स्ट 60% आएगी बिकॉज वो 2011 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, एंड अदर वन इज ऑफ 70,000 और वो 2012 के हिसाब से कैलकुलेट होगी. इफ यू आर गोइंग टू सी द ऑन द बैक स्लाइड विच आई एम गोइंग, यू कैन सी दैट देयर इज अ 70,000. अब इससे अगर पीछे वाले ईयर में वो रही है 60,000, तो दैट मीन्स इट रिमेन्स ऑन द 60,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 70,000, एंड दैट इज कॉल्ड LIFO रिटेल मेथड. जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा और उसी हिसाब से कॉस्ट टू रिटेल भी एडजस्ट हो जाएगी. एंड द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू इज 34,700. इन्वेंट्री इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, यानी 2 लेयर से कंपोज हो रही है, और उसी की बात कर रहे थे हम. नाउ लेट्स सी इन्वेंट्री एट LIFO कॉस्ट 2030 स्टेबल प्राइसेस. सपोज रिटेल प्राइस ऑन 2013 इज 50,000, यानी एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइसेस दिस वन 2011 की 45,000 है, 2012 की कितनी है? 5,000 है. नाउ वी हैव अगेन 60% एंड 70%, मल्टीप्लाइंग देम with the retail prices that we have 30,500, assuming that the ending inventory for 2013 at retail is 50,000. Notice that 2012 layer is reduced by 11,000 to 5,000. यानी 2012 की लेयर कितनी रिड्यूस कर गई है? 11,000 से 5,000 से, because we have presumed that the stable prices are there. फ्लक्चुएटिंग प्राइस हो तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो है दैट इज डॉलर वैल्यू LIFO रिटेल्स. इफ प्राइस लेवल डजंट thus change, the company must eliminate the price change so as to measure the real increase in inventory, not the dollar increase. यानी कि रियल इंक्रीज को देखना है, नॉट द डॉलर इंक्रीज को. Illustration is there. Assume that the beginning inventory has a retail market value of $10,000 and ending inventory had a retail market value of 15,000.